concave mirror. This is called the manufactured virtual image formed by concave mirror. Is it clear, student? Next, transparent glass, which allows the light to pass through. Convex lens is known as magnified lens. It converges the rays of light when we see from the convex lens. So it is also known as the magnified lens. It means छोटी चीज को करके हम देख सकते हैं. In case of convex lens always form erect, oval, and smaller size. White light, when composed into the 7 different colors, it splits up into the 7 different colors. The band of 7 different colors, it is called the spectrum of light. So the form which are available, the 7, the white light, they are Vibgyor, means 7 different. Then it passes from the prism. It Hello, splits up sir. into 7 different colors. The student जो भी आपने पढ़ा मैंने उसको quickly recap किया है. Now we'll switch on to the exercise of the lesson light. Take student. Now exercise. I have the question one by one and I have the solution all the questions. Clear student? Now first question is in the blank. First question है an image not be obtained on the screen is called. अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि वो इमेज जिसको स्क्रीन के ऊपर ना ले सके विच कैनॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. क्लियर स्टूडेंट? ये का आंसर आप क्या करेंगे में क्या फिल करेंगे? यू विल फिल अप वर्चुअल. क्लियर है? नाउ स्टूडेंट बी में कहेंगे image found by the convex dash is unusual and smaller size. अभी देखिए सोचने वाली वही लगा रहता है जहाँ पे लिखा रहता है that is the clear student. तो B में आएगा convex mirror. Clear है? Now students C क्या है? An image formed by a plane mirror is always of the same size. तो तीसरे में क्या आ जाएगा? सी पार्ट में आ जाएगा प्लेन मिरर. सी में आएगा प्लेन मिरर. देन डी पार्ट, अभी मैं डी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. ठीक है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन कवर होते हैं. which can be taken on the screen. That's called a virtual image. Next, in the B part, image found by the convex mirror. That is the image found by a plane mirror. D part में क्या आता है students? An image which can be obtained on the screen. That's called real image. And no. Fifth question, E part, an image found by the concave lens on the cannot be obtained on the screen. Student, question number, we'll switch on to the question number 2. Question number 2 पे switch on करें student. Mark true or false statement. Then if it is true, we'll mark E. If it is false, we'll mark F.
मैं रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट है, वी कैन ऑब्टेन एन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर। नाउ स्टूडेंट, very disturbing. Yes, student, we can ob- we can obtain a large and erect image by mirror। पहले वाला फॉल्स है। दूसरा है, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल वर्चुअली। नाउ स्टूडेंट, देखिए क्या है, अभी अगेन मैं रीड कर रहा हूँ और दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ऑब्टेन, ठीक है, भैया कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर से हमको एनलार्ज इमेज तो नहीं मिलता है, तो ये फॉल्स है। पहले वाले का फॉल्स आंसर आ गया। क्लियर है। मैं दूसरे वाला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये बात सही है कि कनकेव लेंस से वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये स्टूडेंट ये ट्रू है। दूसरे वाला ट्रू है। सेकंड ट्रू। थर्ड, we can obtain real, enlarged and inverted image by a concave mirror। ये भी ट्रू है स्टूडेंट। थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट मैं, a real image कैन नॉट बी obtained ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज तो स्टूडेंट अभी मैंने बताया आपको, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये फॉल्स हो गया। ये क्या है? फॉल्स। फिफ्थ पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट मैं, concave mirror always form a real image। ऑलवेज तो नहीं है स्टूडेंट, ये हमेशा तो रियल नहीं। एक केस ऐसा भी है, जब ऑब्जेक्ट बड़े क्लोज में होता है मिरर के, उस समय ये क्या करता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो स्टूडेंट ये वाला भी क्या हो गया? फिफ्थ भी क्या हो गया? ये भी फॉल्स हो गया। दोबारा, ए का आंसर स्टूडेंट फॉल्स है, दूसरे का आंसर ट्रू है, तीसरे का आंसर भी ट्रू है, और चौथा और पांचवा जो है स्टूडेंट, बी और ई ऑप्शन का आंसर फॉल्स है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग। दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। पहले में दिया है कि प्लेन मिरर, स्टूडेंट प्लेन मिरर की जो भी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स है उससे रिलेटेड है। कोई प्लेन मिरर जो है, इस ऑप्शन में दिया है इमेज इज डायरेक्ट एंड द सेम साइज। तो पहले वाले को हम मैच करेंगे तो 5 से आ जाएगा। फर्स्ट को करेंगे मैच 5 से। क्लियर है स्टूडेंट? फर्स्ट को मैच कर दीजिएगा 5 से। क्लियर है। नंबर 2, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है? नाउ कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। तो सेकंड वाले को आप नंबर 2 से कर दीजिए, बी को आप करेंगे मैच नंबर 2 से। सी है, a convex lens। A convex lens used as a magnified Yes, students, discussing the next, the following three parts. A convex lens is used as a magnified lens। डी पार्ट है concave mirror।
डी पार्ट है कनकेव मिरर इज यूज बाय द डेंट, जो दांत है दांतों के मिरर हैं स्टूडेंट, वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? a concave lens, a concave lens, the image is ऑब्जेक्ट को, जो आपका ई पार्ट है उसको आप 6 मैच करिएगा। दोबारा से बता रहा, मैच करिएगा 5 से हो गया, सेकंड से सी को कर दीजिएगा फर्स्ट से, और डी को कर दीजिएगा, और ई को कर दीजिएगा 6 से मैच करिएगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ दिस वाज द योर which were obtained on the which were given in the end of the lesson. So we have discussed the 3 parts today, that filling the blank, yes, yes students. Now today the brief summary of this lesson light. ठीक है स्टूडेंट, लाइट के लेसन का मैंने आज ब्रीफ समरी, और उसके बाद में क्या किया हमने स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस, हमने डिस्कस किया है कि देखिए स्टूडेंट, मैं और भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 and 6 continue to that with you in detail. This है question number 4, state the characteristics of the image formed by the plane mirror. Now students, question is very very important and answer is also very simple. कि क्या, जैसे ही हम आता है कि what are the characteristics formed by the plane mirror, number 1, plane mirror always form the virtual image. number 1 characteristic clear है कि plane mirror से जब टेक्निकल इशू है, everybody is, you yourself and I also cannot have questions that we have discussed. Question number 1, question number 2 and question number 3. In that we come to the question number 4. The question number 4 states the character student plane mirror की characteristic. number 1, it always form virtual image. कि उसमें से जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है. number 1, the image is always formed the same size. सेम साइज, जितने आप होते हैं, जो आपका साइज है सेम साइज का आपको इमेज दिखाई देता है. नंबर 2, नंबर 3 क्या हो सकता है स्टूडेंट, कि जो इमेज है ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज. आप सीधे खड़े होते हैं ना मिरर के सामने, तो आपका इमेज भी सीधा ही दिखाई देता है. ये बात क्लियर है. नंबर 4, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस. जितना मिरर के आगे होते हैं स्टूडेंट, उतना ही इमेज आपका पीछे बनता है. ये बात क्लियर है स्टूडेंट? तो मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं प्लेन मिरर की. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और प्लीज इसको नोट भी करिए. इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज. इमेज कैसा मिलता है सर? वर्चुअल इमेज. नंबर 1. नंबर 2, द इमेज इज ऑफ सेम साइज. सेम साइज का इमेज बनता है. नंबर 3, द इट इज ऑलवेज फॉर्म द इरेक्ट इमेज. हमेशा सीधा मिलता है, बनता है. और नंबर 4, जितना आप मिरर के आगे होते हैं उतना ही इमेज पीछे बनता है. ये बात क्लियर है? तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी डिस्कस किया. मैंने आपको, शायद आपको क्लियर हो गया होगा. मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. सम ऑफ आवर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट.
हमारे इंग्लिश अल्फाबेट हैं ए से लेके जेड तक, टोटल 26। इसमें से कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको आप मिरर के सामने अगर लिख कर सामने देखेंगे तो उसमें जैसे वो है वैसे के वैसे आपको दिखाई देंगे। आप कहेंगे ये कौन सी बात। मैं कुछ अल्फाबेट आपको बोलूंगा, आप नोट करना और आप लिख लीजिएगा, और उनको कॉपी के ऊपर लिखने के बाद में आपके घर में जो भी मिरर है आप उसके सामने कॉपी लेकर आप खड़े हो जाना, और उसमें से आप देखना, आपको सेम दिखाई देंगे। आपको बहुत अजीब सा एक बार तो एक फीलिंग आएगा कि यस, कि भाई जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे स्टूडेंट इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जैसे लेटर ए है, मान लो मैं लिखता हूँ लेटर ए, लेटर ए लिखा, जैसे अगर आप मान लो लेटर ए लिखा हुआ है, मिरर के सामने आप देखेंगे तो आपको लेटर ए ही दिखाई देगा। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद मैं शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट अल्फाबेट, नेक्स्ट जो लेटर है एच। पहले मैंने बोला ए, सेकंड बोल रहा हूँ मैं एच है। अगर एच को भी आप मिरर के सामने देखेंगे तो आपको वैसे ही दिखाई देगा। क्लियर है स्टूडेंट? दो हो गए, ए हो गया, एच हो गया। थर्ड बोल रहा हूँ स्टूडेंट आई। अगर आई लिखोगे, उसको मिरर के सामने देखोगे तो आपको एग्जैक्टली वैसे दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट मैं आपको बोला हूँ, नेक्स्ट लेटर आपका है एम। अगर आप एम लिखोगे तो मिरर के सामने देखो आपको सेम ऐसे दिखाई देगा। नेक्स्ट है ओ। ओ को भी आप लिखोगे तो एग्जैक्ट आपको वैसे दिखाई देगा जैसा आप लिखोगे। नेक्स्ट है टी। टी, टी फॉर टैंगो। टी फॉर टैंगो, ठीक है। उसको भी अगर आप देखेंगे तो टी लेटर्स को आप सेम का सेम वैसे का वैसा ही मिरर में से देख सकते हैं। नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट है यू। अगर आप यू लिखेंगे तो आपको उसमें से भी आप सेम आपको नजर आएगा। नेक्स्ट है वी। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, वी। और वी के बाद है डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू को आप लिखेंगे तो आप मिरर में से देखेंगे आपको वैसे ही दिखाई देगा। तो स्टूडेंट इन लेटर्स को छोड़कर बाकी जो हैं, आप जैसे ई है या और कोई एफ है लिखते हैं तो वो लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट साइड दिखाई देगी। एंड दिस फिनोमेना इन दिस केस, इस लाइट वाले लेसन में इस फिनोमेनन को हम स्टूडेंट बोलते हैं दैट इज लिटरली इन्वर्शन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज लिटरली इन्वर्शन। स्टूडेंट क्लियर है? मैंने बहुत डिटेल में इसका आपको आंसर समझाया है। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं कराता हूँ आपको, जितना हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट तो आपको लिखने में और लर्न करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब क्वेश्चन है, नाउ विल virtual image is formed. Now, we were discussing what is the virtual image, what is virtual image given situation where a virtual image is formed. कि एक ऐसी सिचुएशन बताओ जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। नाउ स्टूडेंट, वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज देन व्हिच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, नंबर 1। और क्या होता है स्टूडेंट, उसमें हमारे को ना, जो वर्चुअल इमेज में एक्चुअली में क्या है कि जब रेज जो है एक्चुअल में मीट नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे हमको फील होता है, अपीयर रेज आर अपीयर टू मी एट दैट टाइम, एट पॉइंट। तो हमको लगता है कि इमेज बन रहा है, बट दैट इज नॉट अ रियल इमेज, इट इज अ वर्चुअल इमेज। जैसे कि अब उसमें आपको सिचुएशन उसने पूछा है, जो उसका सेकंड पार्ट है, उसमें सिचुएशन स्टूडेंट पूछ रहा है कि ये सिचुएशन बताओ कि जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। स्टूडेंट, जब आप मिरर में से फेस देखते हैं, प्लेन मिरर में जब आप फेस देखेंगे तो इट इज ऑलवेज
फार्म होता है, डियर स्टूडेंट, वर्चुअल इमेज फार्म होता है और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। बात क्लियर है? So this was all about for today's lecture, students. Now, if you are having any doubt, please you may clear your doubt. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है इस लेसन के स्टार्टिंग से लेके अब तक जहां तक मैंने पढ़ाया है, प्लीज पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आई विल अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स दोज हु विल आस्किंग दी डाउट टू मी। जो मेरे से डाउट क्लियर करेंगे या पूछेंगे तो मैं उन स्टूडेंट को अप्रिशिएट करूंगा।